नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू को। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आईएमएफ टू एक्सटेंड $2.9 बिलियन टू श्रीलंका, ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में और इसकी मैंडेट क्या है। तो जो आईएमएफ है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। IMF and World Bank are also known as Bretton Woods twins क्योंकि both were agreed to be set up at the conference in Bretton Woods in the US। अगर इसकी मैंडेट या फंक्शंस की बात करें तो it works to achieve sustainable growth and prosperity for all of its 190 member countries। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका इंडिया मेंबर है या नहीं। आपको ये चीज कमेंट सेक्शन में बतानी है हमें। इसकी जो मेजर पब्लिकेशंस हैं कौन सी हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर एंड ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा। Our next important headline is Kerala passes University Laws Amendment Bill। ये अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 एजुकेशन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है की हाइलाइट्स ऑफ यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये जो बिल है, इट वुड रिजल्ट इन कर्टेलिंग द पावर ऑफ गवर्नर एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज एकेडमिया रिसर्च एंड ग्लास सीलिंग इन इंडिया। ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है पेपर 1 रोल ऑफ वुमेन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो why women are still an underrepresented population globally in hardcore science, technology, engineering and mathematics। It is also known as STEM। इस context में इंडिया की पोजीशन क्या है और various programs initiated by the government to empower women in the workforce and what more steps need to be taken in this context। तो अभी इस एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है कि women are still an underrepresented population globally in hardcore science, technology, engineering and mathematics according to available UNESCO data on some selected countries। India is at the lowest position, having only 14% of female researchers working in STEM areas। इस context में government of India has been ramping up efforts to remove gender inequality by providing incentives for women higher education, and also some institutions are setting up creches so that scientist mothers can carry on with their research work uninterrupted। In last, it is stated that equality or parity will happen only when there is change in the mindset and institutions consider women as an asset rather than simply a diversity rectification issue। Our next important headline is big picture takeaways from China's Taiwan drill। It is available on page number 10 और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है नेचर ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, व्हाट इज बिहाइंड चाइना ताइवान टेंशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो रिसेंटली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना concluded military drills in Taiwan state after United States House of Speaker visited to Taipei। It reveals great deal about nature of military capabilities of People Republic of China। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, आपको अगर जानना है what is behind China Taiwan tensions and future prospects, तो इसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। Our next important headline is Can civil servants express their views on law governance। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। In this article we have to know what are the key highlights of Central Civil Services Conduct Rules of 1964। बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। Our next important headline is Effecting the ban on single use plastics। ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है what are single use plastics, how do they impact the environment, what are the amended rules and alternatives available। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने इन सारे पॉइंट्स को अपनी वेबसाइट पे कवर किया हुआ है और उसका लिंक अवेलेबल है। अगर हम ओवरव्यू देखें अमेंडमेंट रूल्स की, तो इट प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स whose thickness is less than 75 microns। ठीक। Our next important headline is Why has the Supreme Court relaxed the ban on iron ore mining in Karnataka। ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 1 ज्योग्राफी से। In this article we have to know about the distribution of iron ore in India, Supreme Court's observations on iron ore mining in Karnataka। So recently Supreme Court raised the ceiling limit of iron ore mining for 3 districts in Karnataka, saying that the conservation of ecology and environment must go hand in hand with the spirit of economic development। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो iron ore mine occur in close proximity to the coal fields in the northeastern plateau region of the country, which adds to their advantage। जो मेजर iron ore reserves हैं इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? They are located in Odisha, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश and तमिलनाडु। Our next important headline is Vostok 2020 begins in Russia with India China participating। ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से। In this article we have to know about the Vostok 2022।
तो ये क्या है? इट इज अ मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक कमांड एक्सरसाइज एंड इट इज एम्ड एट इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट अदर पार्टिसिपेटिंग मिलिट्री कंटिजेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज 7 स्टेट्स कॉल टू सेंटर्स क्राइम पोर्टल। ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर आल्सो नोन एज क्राइमैक एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्राइमैक है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2020 by the Ministry of Home Affairs to share information on crime and criminals 24/7 with various law enforcement agencies and ensure seamless flow of information among them. The application run by National Crime Records Bureau and it aims to help in early detection and prevention of crime incidents across the country. Our next important headline is इंडियन मेड HPV वैक्सीन दिस ईयर। ये अवेलेबल है पेज नंबर 16 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 हेल्थ से। इस आर्टिकल में हमें जानना है सर्वाइवैक के बारे में। तो सर्वाइवैक क्या है? इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। इट इज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन जुलाई। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज UN accuses China of Uyghur rights abuses। ये अवेलेबल है पेज नंबर 17 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द हु आर Uyghurs, why are they facing issues, accusation on China, response of global community and India in this context। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही और जाते जाते एक कोट के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। कीप गोइंग क्योंकि डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। थैंक यू।